Good morning, students. Today we will start with a fresh chapter, and the name of the chapter is okay, lesson 6 of history. Towns, traders, and craft person. Towns, traders, and craft persons. First, let me explain, and then I will try to show you some PPT. Okay, PPT में थोड़ा आप लोग जो है देख पाएंगे. Lesson 6 of history. Okay. Now we see, as far as this chapter is concerned, have a look, children. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? Page number 75. Zaid Anwar. Zaid Anwar, mute करो खुद को. बाजीला पक्की दाढ़ी वाला झूला लेके. Have a look, children. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was. Okay, तो medieval period में जो है मध्यकालीन युग में जो है बहुत प्रकार अलग अलग प्रकार के जो है शहर हुआ करते थे, और इस चैप्टर में हम उन शहरों के बारे में पढ़ेंगे. We will try to study the different towns that were available during that time. Okay, and we know that the medieval period, it began with the arrival of the Mughals. Okay, it began with the arrival of the Mughals. Now see, okay, a temple town, an administrative town, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. Okay, so we see there were many kinds of towns. There were, okay, different kinds of towns during the medieval period. We can write this kinds of towns ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड. तो मध्यकालीन युग में जो है अलग अलग प्रकार के शहर हुआ करते थे, और इनको क्यों टेम्पल टाउन कहा जाता था, क्यों इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहा जाता था, इसके पीछे क्या राज है वो हम समझने का जो है प्रयास करेंगे. सो वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स. You have temple towns, then you have administrative towns, port towns, okay, commercial towns. जो वाणिज्य के लिए जो मशहूर हुआ करते थे शहर, उनको जो है कमर्शियल टाउन कहा जाता था. इसके अलावा हम देखेंगे पिलग्रिमेज टाउन्स. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे शहर थे जो ओके तीर्थ के लिए मशहूर थे. ओके, सो वी सी दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाउन्स. ओके, वी सी. Now let us try to study about each of them one by one. Now, if you look at the map, have a look at a map. Map number 1, some important centers of trade and artisanal production in Central and South India. Okay, तो सेंट्रल जो हमारे सेंट्रल इंडिया है और जो दक्षिण भारत है, ओके, यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वो उनके बारे में जो है ट्रेडिंग सेंटर्स थे इसके बारे में दिया गया है. और कुछ जो है आप देखेंगे कि उनको बॉक्सेस में दिया गया है. एक है सूरत और दूसरा है हम्पी. Okay, see, one is Surat and the other one is Hampi and the third one is Masulipattnam. These are what? Surat, Hampi and Masulipattnam, these are the port towns. Okay, have a look, children. And these were important centers of trading activity. And what we see is, we see that as far as the administrative centers are concerned, let us start with the administrative centers. अब administrative center का मतलब क्या होता है? Administrative center का मतलब होता है प्रशासनिक केंद्र. ओके, जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो अलग अलग प्रशासनिक केंद्र वो अपना रखते थे. हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो. You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the Cholas. Who founded the Chola dynasty? मैंने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया है. टेल मी, हु फाउंडेड द चोला डायनेस्टी? चोला वंश की स्थापना किसने की थी? एनीबॉडी? ऑल फॉरगॉटन, ऑल. राजा राजेंद्र वन. हाँ,
राजा राजेंद्र वन। हाँ देखो, मैम विजय लाला। मैम विजय लाला। विजय लाल। चलो ठीक है, छोड़ दो, रहने दो। लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। ओके, अभी बहुत सारे जो हैं वो अभी सो रहे हैं, अभी उठते उठते उठेंगे। तो देखो यहाँ पे, let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the Cholas. Okay, so we see that Tanjavur, okay, it was the capital of the Cholas. ठीक है ना? अब ये जो चोला जो राजा थे, उनका राजधानी जो है ये तांजावुर हुआ करता था। ओके, now see, as it was 1,000 years ago, the perennial river Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bell of Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. Okay, the townspeople are all praised for its architect. Okay, Kunza Ramalan Raja Raja. Okay, Perunta Chachan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive Shivalinga. ओके, इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग। और मैंने आपको ग्रुप में जो है जो शिवलिंग था उसका जो है इमेज आपको फॉरवर्ड किए थे, की थी मैं, आप लोगों ने देखा होगा। Besides the temple, there are palaces with mandapas or pavilions. Okay, kings hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. Okay, there are also barracks for the army. The town is bustling with markets selling grain, spices, cloth, and jewelry. Water supply for the towns comes from wells and tanks. There's a question: how was water supplied to the city of Tanjavur? Okay, so we see that, okay, water was supplied to the city of Tanjavur through wells and tanks. Okay, the Salaya weavers of Tanjavur and the nearby town of Urayar are busy producing cloth for flags to be used in the temple industry. Okay, ई वाला चला था अबे एगो क्लास करनी हिंदी का अबे चला हम ला हम देखते हैं एसएसटी हम देखते हैं कि देखो, ओके, व्हाट वी सी कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग कामों में जो है वो व्यस्त रहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सलाइया वीवर्स हैं, ओके, सलाइया वीवर्स ऑफ तांजबूर, दे आर what they are preparing the cloth that will be used in the temple festival. Fine cottons for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Some distance away at, okay, Swabi Malai, the Stapatis or the sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal maps. Okay, bell metal lamps. अब देखो ये जो ब्रॉन्ज होता है, ओके, आपके बुक में दिया गया है, देखो, ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, पेज नंबर 77. इफ यू हैव अ लुक एट ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक, तो इसमें आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। यस बेटा, आवाज आपकी ब्रेक हो क्या आ रही है? So we see that bronze is an alloy of what? Alloy of tin and copper. ठीक है ना? तो टिन और कॉपर को मिला के जो है ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे बेल मेटल लैंप्स, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है ना? ये जो स्कल्पचर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या बना रहे हैं? बेल मेटल लैंप्स बना रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट आर दीज बेल मेटल लैंप्स? बेल मेटल जो होता है इसमें कॉपर की मात्रा जो है वो कम रहती है। ओके, इन बेल मेटल, it is there in your book, okay, the ratio of tin is more. Okay, the ratio of tin is more in comparison to what? In comparison to copper. As such इसमें जो है टिंकलिंग साउंड आता है कंपैरिजन टू कॉपर। तो इसके वजह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेल मेटल होता है इसमें जो है, ओके, जब आप इसका ये जो घंटियां जो बनती हैं बेल मेटल की, ठीक है ना, बेल मेटल के जो लैंप्स बनते हैं वो उसमें एक अलग से जो है टिंकलिंग साउंड आते हैं।
See, bronze is an alloy containing copper and tin. Bell metal contains a greater proportion of tin and than other kind of bronze. This produces a bell-like sound. Chola bronze statues, okay, see chapter 2 आपको पूछा गया है. There was a statue, okay, bronze statue था chapter 2 में आपने देखा होगा. Were made using the lost wax technique. अब ये lost wax technique क्या है? Okay, now see what is this lost wax technique. This often the question is asked, what is lost wax technique? Okay, now what happens? Okay, in lost wax technique, an image made of clay, ठीक है ना, मिट्टी के एक मूर्त को, ओके, हम क्या करते हैं, ओके, is filled with melted wax, ठीक है ना, ओके, इसको क्या किया जाता है, ऐसे है क्या, is it so, हाँ, how is it done, tell me, Jay, how is the lost wax technique applied, बोलो. Ma'am, a statue of clay. Ma'am, a statue of clay is made and filled it with wax. And then, ma'am, the statue of wax was made and then it was covered with clay and allowed to dry. Next, it was heated and a tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. The molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay was carefully removed and the image was clean and polished. थोड़ा गलत हो गया, ओके, सबसे पहले जो है मोम की मूर्त बनाई जाती है, ओके, एन इमेज Yes, ma'am. मेड ऑफ वैक्स, एन इमेज मेड ऑफ वैक्स इज कवर्ड विथ क्ले, ओके, इसको मिट्टी से जो है कंप्लीटली ढक दिया जाता है, ठीक है ना, ओके, जो Yes. मोम होता है, ठोस जो सॉलिड जो वैक्स होता है, उसके ऊपर नक्काशी करके जो है, उसके ऊपर जो है क्या करते हैं, उसके ऊपर नक्काशी करते हैं, नक्काशी करके एक मूर्त मैम क्ले बनाते से हैं. कवर कर दिया जाता है. हाँ, उसके बाद उसको जो है मिट्टी से कवर कर दिया जाता है बहुत बारीकी से, ओके, हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से कवर किया जाता है मिट्टी से. साहिब आलम, मैम और म्यूट इसमें योरसेल्फ. साहिब आलम कुरैशी, see children, okay, first an image of wax is prepared and then it is covered with clay and okay, अब जब इसको मिट्टी से जब ढक दिया जाता है, नीचे की तरफ एक होल छोड़ दिया जाता है, ओके, और रेस्ट ऑफ द बॉडी मेड ऑफ वैक्स इट इज कवर्ड एंड अ होल इज मेड एट द बॉटम. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस होल इज मेड एट द बॉटम, ओके, अब इसको आवे में डाल दिया जाता है, इसको ओवन में डाल दिया जाता है, इसको ओके, कुक होने के लिए, ठीक है ना, बेक होने के लिए. अब जब ये मूर्ति जब बेक होने लगती है तो क्या होता है, उस होल के थ्रू जो है मोम जो है वो पिघल के बाहर आ जाता है, ठीक है ना. अब उस होल के थ्रू मोम जो है वो पिघल के बाहर आ जाता है. उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये मिट्टी की मूर्त जब ये ठंडी हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें जो मेटल है, जो धातु है, उसको लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर डाला जाता है थ्रू दैट होल, ओके, उस छेद के थ्रू जो है, जो बॉटम में जो होल बना है उसके थ्रू उस मेल्टेड मेटल को डाला जाता है और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, ओके, ठीक है ना, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है. व्हेन वी वर इन स्कूल, आई हैव स्टडीड फ्रॉम आईसीएसई मीडियम, ओके, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एससीपीडब्ल्यू होता था, तो एससीपीडब्ल्यू में हमें कैंडल बनाना सिखाया जाता था, हाउ टू मेक कैंडल. सो वी वर गिवन, ओके, क्रम्स ऑफ वैक्स, हमें जो है मोम के टुकड़े दिए जाते थे, हमें एक मेटल जो है वेसल दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि आप इसमें इसको मेल्ट करिए. जब वो मेल्ट हो जाता था हमें सांचे दिए जाते थे और ओके, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम लोग कई बार जो है जो वैक्स होता था उसमें हम लोग क्रेयॉन्स डाल देते थे, रंगीन मोम रंगीन जो है लैंप बनाने के लिए हम लोग जो है क्रेयॉन्स डाल देते थे. नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू, okay,
what we see is, we see that, okay, one layer after the other. I was very experimenting, and what I used to do is, एक कलर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा मैं उसमें डालती थी, और उसके बाद जब वो पूरा कवर हो जाता था, उसके बाद थोड़ा सा धागा बाहर की तरफ निकला रहता है, ओके, और बाकी जो है उसको हम लोग ठंडा कर देते थे, पानी में डाल के उसको ठंडा कर देते थे। जब वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता था, अक्सर जो है हम लोग क्या लेते थे, प्लास्टिक के डॉल्स लिया करते थे, ठीक है ना। प्लास्टिक के जो मेले में जो डॉल्स मिलते हैं, या जो छोटे छोटे जो पुतले मिलते हैं, उनको हम लोग लेके आते थे, और उनको जो है हम लोग उसमें जो है मेल्ट किया हुआ वैक्स डाल के हम लोग तैयार करते थे। Now see children, so this is how the lost wax technique is applied. Okay, an image made of wax is covered with clay and heated. Okay, the wax melts out. Okay, then the idol is filled with. It is filled with what? Okay, melted metal. Okay, and cooled. Okay, so what we see is, we see that, okay, this is how the lost wax technique was applied, and this is how the bronze images were made. Okay, now see, lesson children, temple towns and pilgrimage centers. Why do you think, what do you think were the advantages of using this technique? इस टेक्निक का क्या एडवांटेज हो सकता है? इस टेक्निक का आपके हिसाब से क्या एडवांटेज हो सकता है? Tell me, what can be the advantage of using this technique? मैम होता है Anubhav Kharwar, I am going to remove you from the group itself. If you will not behave ना, मैं आपको ग्रुप में से हटा दूंगी. And nobody is going to add you. Mind it. What will be the advantage, beta? Jay? इसका क्या एडवांटेज होगा बेटा, बताओ। अक्सर जब आप देखते हैं, जब आप स्कल्पचर्स को देखते हैं, ठीक है ना, जो मूर्तिकार होता है उसको अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर वो ठोस धातु लेता है और ठोस धातु के ऊपर अगर वो नक्काशी करने जाता है, तो उसको बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। ओके, उसको बहुत समय लगेगा उस ठोस धातु को एक आकार देने में। लेकिन जब हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, जब हम वैक्स की जो ये जो मिट्टी का जो सांचा है, उसके अंदर अगर हम जो है मेटल को पिघला के अगर हम डालते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है ना। जो मोल्ड जो हमें स्टैचू मिलेगा, कूल होने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद जो स्टैचू हमें मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हमें मेहनत करने होगा उसको फिनिशिंग देने के लिए। Okay, we will take little effort to give finishing to that idol. So this will be the advantage. We will be saving our time, okay, and we will be also saving our what? Metal. Okay, we will be saving our metal, we'll be saving our time, and we will be able to give proper shape. We'll be able to give proper shape to the idol that we want to prepare. Is it clear? Huh? Yes, Temple ma'am. यस मैम टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज टाउन्स। ओके, कोशिश करते हैं बेटा, जब आप कोशिश करोगे तभी जाके हो पाएगा। प्रयास करते हैं, कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर देने का प्रयास करते हैं। Now let us see, have a look, temple towns and pilgrimage centers. So अगर हमसे कोई पूछेगा name one temple town, so what you will say? It is okay, तंजावुर तांजावुर। तांजावुर is an administrative town. हाँ, कौन बोल रहा है जी? सबसे पहले तो तांजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आएगा ना, उसके बाद टेम्पल टाउन में आएगा ना। हाँ, अभी हमने सबसे Yes, पहले ma'am. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स पढ़ा ना। हैव अ लुक चिल्ड्रन,
temple towns and pilgrimage centers. Tanjavur is also an example of a temple town. Okay, temple towns represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. Okay, so what is urbanization? What do you mean by the term urbanization? Okay, The process by which cities develop. हाँ, it is the process. तो cities कैसे develop होते हैं? Okay, it is the process, okay, by which cities develop. ये आपके बुक में दिया गया है, ठीक है ना? तो शहरों का विकास कैसे होता है? ओके, अर्बनाइजेशन को हिंदी में हम शहरीकरण कहते हैं, ठीक है ना? ओके, मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर पीपल, ओके, देखो, व्हेन मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट, ठीक है ना? जब ज्यादा संख्या में लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं, ओके, तो इसे हम शहरीकरण कहते हैं, ठीक है ना? More and more people migrate from villages to towns. Okay, this process is called, okay, urbanization. ये लोग शहर की तरफ क्यों मूव करते हैं? ये लोग शहर की तरफ मूव करते हैं बेहतर रोजगार की तलाश में, ओके, बेहतर सुविधाओं की तलाश में, ठीक है ना? अब मान लो ग्रामीण क्षेत्र जो है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, our country is an agricultural dominated country, and what we see, okay, in an agricultural sector, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें साल भर जो है हमें काम नहीं मिलता है, isn't it? We see all throughout the year we don't get any work. I hope you remember class 6 book. क्लास 6 की बुक अगर आपको याद होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि साल के 6 महीने जो है किसान को बैठना पड़ता है, किसान के पास जो है कोई काम नहीं रहता है, ओके, साल के 6 महीने में ही जो है आप देखेंगे कि खेती होती है और बाकी 6 महीने में जो है फील्ड जो होता है, ओके, द फील्ड इज लेफ्ट फैलो. सो व्हाट वी सी, अब ये 6 महीने जो लोग बैठ के रहते हैं उनको कुछ काम चाहिए ना, उनको कुछ जीविका चाहिए, तो हम देखते हैं कि जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है, व्हेन इट इज द हार्वेस्टिंग टाइम, ओके, जब फसल काटने का समय होता है और जब बस फसल बोने का समय होता है, आप अभी देख रहे होंगे कि अभी सारे खेतों में जो है धान के फसल हो रखे हैं, पैडी, ओके, इज रेडी फॉर बीइंग हार्वेस्टिंग, ओके, तो अभी बहुत सारे लोग जो है अपने अपने खेतों में जो है धान के फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, एंड वी सी आफ्टर दिस द पीपल दे विल बी गोइंग फॉर व्हाट, दे विल बी गोइंग फॉर मस्टर्ड, इजंट इट? सरसों की खेती होगी, ओके, आप देखेंगे बसंत पंचमी का आगाज जो है वो सरसों के फूल से होता है, खेतों में आप देखेंगे सरसों के फूल लहलहाते दिखाई देते हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो फसल लगाया जाएगा वो होगा गेहूं, ओके, द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ व्हीट इज अप्रैल, मार्च अप्रैल में आप देखेंगे कि गेहूं तैयार हो जाता है. तो एक के बाद एक हम देखते हैं कि कुछ पीरियड्स होते हैं जिसमें देयर आर टाइम व्हेन द persons, the agricultural laborers, they get work, okay, the laborers they get work when the laborers, okay, get work during the sowing season, okay, during sowing season and harvesting season. जब बुआई का समय होता है तब उनको काम मिलता है, एंड जब फसल काटने का समय होता है तब उनको काम मिलता है, और बाकी समय में जो है वो लोग बैठे रहते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर वर्क. गांव में जो है इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना? खेती के अलावा और कोई काम है ही नहीं. तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट टू द सिटीज. आप देखेंगे, यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड अबाउट बच्चू माझी. आई होप यू रिमेम्बर बच्चू माझी. जय बच्चू माझी, urban livelihood, the last chapter of your civics book, class 6. Who was Bachchu माझी? All forgotten, na? He was a rickshaw puller. Okay, आपके बुक में, सिविक्स की बुक में एक इमेज था बच्चू माझी का, रिक्शे में सोए हुए हैं. हाँ, बच्चू माझी, he was a यस rickshaw. मैम, इमेज देखे हैं. हाँ, ठीक है ना? तो बच्चू माझी क्या थे? बच्चू माझी एक रिक्शा पुलर थे, ठीक है ना? जब साल में उनके पास काम नहीं रहता था तो वो शहर की तरफ मूव करते थे और वो रिक्शा चलाते थे, और रिक्शा चला के जो है वो पैसे इकट्ठा कर लेते थे,
ठीक है ना। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जब ये बुआई का समय होता है तो ये वापस गांव आ जाते हैं, और फसल कटने का समय होता है तो ये लोग आ जाते हैं, बाकी समय ये लोग शहर में काम ढूंढते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं, इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, टेम्पल्स वेर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। हमने देखा है कि ये जो टेम्पल्स होते थे, इनका निर्माण जो है शासक लोग करवाते थे अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए। और हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में हमने पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे शासक होते थे, ओके, जो दूसरे राज्यों के ऊपर जो विजय करके जो वहां से, ओके, मूर्तियां लाए हुए रहते थे, उन मूर्तियों को क्या करते थे, अपने जो टेम्पल, जिस टेम्पल का उन्होंने निर्माण किया है, वहां पे वो लोग उसको प्लेस कर देते थे, इन ऑर्डर टू शो देम, ओके, in order to show the rest of the people that they have conquered so many places, they have okay, they have been able to defeat so many people. So we see the temples were centers of attraction for the invaders as well as for the rulers itself. Okay, each ruler tried to demonstrate his power and wealth through the construction of temples. Okay, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, why were temples central to the economy? So we see temples were the, okay, centers of administrative power. ठीक है ना, प्रशासनिक जो पावर थी, ठीक है ना, जो शक्ति थी, उसके जो है ये केंद्र हुआ करते थे। वेयर द सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स, रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर। व्हाट? अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, ठीक है ना, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, देयर पावर, ओके, एंड वेल्थ, वेल्थ, और तो और वो अपना जो भक्ति है, अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति है, ओके, उसको भी दिखाने के लिए जो है वो टेम्पल्स का जो है निर्माण करवाते थे। ओके, एंड डिवोशन टुवर्ड्स देयर डेटीज, टुवर्ड्स देयर डेटीज, ठीक है ना। तो अपने इष्ट के प्रति अपनी समर्पण को, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए जो है टेम्पल्स का जो है, मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। राजा राजेश्वर टेम्पल हो गया, गायंकाकोंडा चोलापुरम टेम्पल हो गया, ओके, एंड वी हैव बृहदेश्वरा टेम्पल इज देयर, सो मेनी टेम्पल्स हैव बीन देयर, द सोमनाथ टेम्पल। ओके, आवर कंट्री इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। हमारा जो है देश जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। हम देख रहे हैं कि विश्व के 8 प्रमुख धर्मों का यहाँ अनुसरण होता है, और हर धर्म के अनुयायी जो है अपने, ओके, मंदिरों का निर्माण करते हैं। तो देखो, they also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. जो तीर्थयात्री आते थे, ओके, इन मंदिरों के पास, ठीक है ना, मंदिरों का जो है दर्शन के लिए, वो लोग भी जो है अनुदान देके जाते थे। आप देखेंगे जब कभी भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, एक दान पेटी रखी रहती है, आप उस दान पेटी में जो है कुछ दान कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे देश में इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे 2 मंदिर हैं, ठीक है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा डोनेशन होता है। वन इज द शिरडी, ओके, साईं बाबा का जो स्थान है, पैतृक स्थान है शिरडी, वहां पे सबसे ज्यादा चढ़ावा हमारे देश में चढ़ता है। उसके बाद है आपका वैष्णो देवी ट्रस्ट, ओके, जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं वहां पे भी सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल, ओके, दैट गेट्स लॉट्स ऑफ डोनेशन इज द तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी में तो, ओके, जो अनुदान होता है वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ वहाँ की एक प्रथा है कि अगर आपकी कोई मन्नत पूरी होती है तो आप अपने बाल चढ़ाते हैं। ओके, यू डोनेट योर हेयर, if your wish is fulfilled, you donate your hair to the Lord, that is, okay, Jagannath, ठीक है ना।
सो व्हाट वी सी, और ये जो हेयर्स डोनेट किए जाते हैं, यस बेटा बोलो। मैम ये आदमी और औरत दोनों लोग चढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैम ये आदमी और आदमी और औरत हाँ आदमी और दोनों लोग औरत दोनों चढ़ाते हैं। दोनों दोनों, जिसकी मन्नत पूरी होती है वहां पे ग्रेडिंग की जाती है। जो बाल जो चढ़ावे में चढ़ता है ना बेटा, हाँ उसकी जो है यस उसका अच्छा खासा मार्केट है यस वहां मैम। पे। उसको ग्रेडिंग की जाती है और सेग्रीगेट करके जो है अलग अलग जो क्वालिटी के जो हेयर्स होते हैं उनके विग तैयार किए जाते हैं। उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है। इतना वहां पे हेयर डोनेशन होता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ फ्लरिशिंग मार्केट आउट देयर। Okay, now see, temple authorities use their wealth to finance trade and banking. So what we see is temple authorities. Okay, और ये जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे इनको कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता था? एनीबॉडी टेल मी, बोलो। How it was maintained? मैम आर्काइव्स। No, not archives. हाँ, टेम्पल अथॉरिटीज जो थे वो अपने वेल्थ को यूज करते थे। ओके, अब जैसे ब्राह्मण है, ठीक है ना, कोई ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, या जो ब्राह्मण है जो पूजा अर्चना कर रहा है उसमें कोई शासक जा रहे हैं और उनकी कोई मन्नत पूरी हो जा रही है, तो वो उस मंदिर को और उस ब्राह्मण को अनुदान देते थे। तो उस अनुदान को द लैंड ग्रांट, ओके, और द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रांट दैट वर प्रोवाइडेड टू द ब्राह्मणास, दे वर केप्ट रिकॉर्डेड ऑन व्हाट, how it was maintained? हाँ दीक्षा, इंस्क्रिप्शन। ना बेटा, इंस्क्रिप्शन अगर होगा, चलो मान लो अभिलेख हम ले लिए, तो उसको किस पे इंस्क्राइब किया जाता था? इंस्क्रिप्शन अगर हम ले लिए तो उसको किस पे इंस्क्राइब किया जाता था? हम्म हम्म बोलो। कॉपर प्लेट्स, ठीक है ना, ठीक है, कॉपर प्लेट्स में उसको रिकॉर्ड किया जाता था। ओके, जो कॉपर के जो प्लेट्स होते थे ना उस पे रिकॉर्डेड फॉर्म में वो रहते थे कि इसको कितना अनुदान दिया। ओके, इट वाज मेंटेन्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। Okay, now see, gradually a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple, okay, to cater to its needs and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Okay, तो ये जो टेम्पल्स थे ये एक ऐसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभर के आते हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि जो राजा महाराजा हैं वो अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए इनका निर्माण कर रहे हैं। और जो टेम्पल्स होते थे वहां पे जो आसपास के जो लोग होते थे जिनकी जीविका उन मंदिरों की वजह से चलती थी, तो आस्ते आस्ते जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है व्यापार का जो है ये केंद्र बन के उभर के आने लगते हैं टेम्पल्स। हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है गार्लैंड मेकर्स हैं, जो भगवान को चढ़ाने के लिए जो है फूल की माला तैयार कर रहे हैं। अभी भी अगर आप बरमाइन चले जाएंगे, यहाँ बलिया में बरमाइन देवी हैं, वहां पे आप चले जाएंगे तो जो भक्त होते हैं उनका फिक्स रहता है। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो 21 गुड़हल के फूल का माला पसंद करते हैं, कुछ 51 गुड़हल के फूल का माला पसंद करते हैं। तो जो गार्लैंड मेकर्स वहां पे जो मार्केट लगा के बैठे रहते हैं वो उनके लिए स्पेशली माला बना के रखते हैं। तो उनकी जीविका का स्रोत क्या हो गया? उनकी जीविका का स्रोत हो गया वो मंदिर। जो भक्त उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे उन्हीं के यहाँ से फूल खरीदेंगे, ठीक है ना। So we see towns emerged around temples such as those of, okay, Vilas Bamin, Vilsa or Vidisha in Madhya Pradesh. Then you have Somnath in Gujarat. Other important temple towns included Kanchipuram, Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. Underline this. Okay, these are some of the important temple towns. इसको आप underline करके रख लीजिए। Pilgrimage centers also slowly developed into townships. तो जो तीर्थ स्थल होते थे, ठीक है ना, जहाँ पे लोग तीर्थ के लिए जाते थे, वो भी जो है आस्ते आस्ते जो है वो, ओके, फेमस जो है टाउन्स के रूप में ये पिलग्रिमेज सेंटर्स भी जो है उभर के आने लगे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज से हम क्या समझते हैं?
तीर्थ यात्रा। हाँ वो तो मुझे भी पता है, तीर्थ यात्रा। हाउ विल यू डिफाइन इट? व्हाट इज पिलग्रिमेज? इट इज अ जर्नी ना। हाँ, पिलग्रिमेज क्या होता है? इट इज अ जर्नी, हाँ, जर्नी टू द सेक्रेड प्लेस, isn't it? जो आपका जो पवित्र स्थान होता है, सेक्रेड प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, किसी भी धर्म से संबंधित जो पैतृक स्थान, पवित्र स्थल होता है, ठीक है ना? ओके, उसको हम, उसकी यात्रा पे अगर हम जाते हैं तो हम उसे पिलग्रिमेज कहते हैं। लाइक सपोज द मुस्लिम्स, मुस्लिम लोग जो है वो हज पे जाते हैं। हज पे कहाँ जाते हैं साहिब आलम? आर यू देयर? मक्का। हाँ, मक्का मदीना जाते मैं हैं। आपको ऐसे ठीक है 3 ना? अमीर बनने के रहस्य बताऊंगा जो आपकी जिंदगी हाँ, बदल देंगे। किशन सिंह, अपने दिमाग तुम में खुद सेट अमीर हो जाओ। Nobody is interested to become rich. जो आप बनना चाहते हो फ्यूचर में, वो दिमाग में अपने 5 देखो, मिनट आपको I डेली had to सोचना है, तो remove this बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी आपको। Kishan Singh दूसरा and ये I सोच had छोड़ to दीजिए remove कि someone आपको else. Okay, sorry Avilasha. Have a look children. Pilgrimage centers also slowly developed into townships. See, Brindavan, Uttar Pradesh and Tiruvannamalai, Tamil Nadu are examples of two such towns. Underline this. These are the pilgrimage towns. Brindavan. Okay. And Tiruvannamalai. See, this is there. तिरुवन्नमलाई। Tiruvannamalai. Okay, South Indian names. Tiruvannamalai. ठीक है ना? Are examples of what? Are pilgrimage towns. ठीक है ना? लोग यहाँ पे जो है, okay, तीर्थ के लिए जाते हैं. So we can say that these are, okay, these are temple, these are pilgrimage towns. Now see Ajmer. Ajmer was the capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarter under the Mughals. तो अजमेर शरीफ जो है वो मुस्लिम्स के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। ओके, वहाँ पे हम देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर शरीफ में। ओके, और जो हिंदू हैं, अगर मैम पुष्कर लेक है भी है। हाँ, हमारे देश में अगर कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा होती है तो वो अजमेर में ही होती है। ठीक है ना? ओके, अजमेर में ही भगवान ब्रह्मा की जो है मंदिर है पुष्कर में। ओके, और वहीं पे जो है हिंदू एकत्रित होते हैं।